हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई मित्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राजू पलेजा साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी कंपनी क्या बनाती है, आपके कस्टमर्स क्या है और आपका बिजनेस मॉडल क्या है। Sir, basically we are in fabrication of metal, wood and plastic articles. And business wise अगर हम लोग देखा जाए तो we have two major verticals. One of our major vertical is where we are making retail stores. Basically, you can say that we are converting shops to experience zone. So ओके, एक स्टोर में आप जाते हो बिल्कुल। शॉपिंग के लिए, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो एपरल्स हो, चाहे ब्यूटी हो या और कोई हो, जब भी आप स्टोर्स में जाते हो एंड वॉट एवर द फर्नीचर वॉट यू सी where the brand products are being displayed. राइट। So we make all those furniture, which is a combination of lots of items, lot of material processes. So we manufacture that with a state-of-the-art facility in our factory, and then we get it installed at the site. So one is the vertical is we are making the store fit outs, which is a retail industry. And second, our vertical is we are making industrial products. Industrial products like we are making electrical power panels, we are making petroleum kiosks, we are making HVAC components. So there we are working for a selected very big giant MNC companies. ओके, And same way in retail also we work with corporates. गॉट इट। So if you see our client list, almost all are corporates. So these are the two verticals we are in. We are located at Vasai, which is near to Mumbai. राइट। Our factory is almost 2 lakh square feet बिग। with, as I mentioned, the state-of-the-art machines. All are CNC machines. Some are from Europe, some are from Japan, very few from China. And once the material is made in factory, of course, it goes through rigorous QC process across. And after the final QC is done, then material goes to the warehouse. So we have a 75,000 square feet of warehouse near to the factory with a heavy duty racking. And from the warehouse, as per the client's instruction, the material is shipped to the site with a day's notice or 2 days notice. So nothing normally goes from factory to the site. ओके, Business model wise, if I would say how the process goes, in both there are two verticals as I mentioned. First, we talk about the retail vertical. Retail vertical is such where we are in projects. So any project gets materialized, it takes about 6 to 8 months on an average. The process goes like this. Either we approach a client or client approaches us. It's a very niche industry. It's a very राइट। talented industry. It is an industry where you need a lot of talent and infrastructure. So there are many challenges, and where the challenges are, the profit are also there. So we love this industry. And so client approaches us or we approach client. Then there is exchange of brief, the ideas, what they want to make. Once we have that, then we start working on drawing and prototyping. There are lot of to and fro in that. Once the drawings and prototyping get approved, it goes in a pilot stores. Couple of stores we do 1 or 2 as a pilot. Once the pilot stores are approved, then we go in a rollouts. Our business model is rollout of stores. Somebody will open 25 stores. Somebody will open 100 store in a year's time approximately. We are in rollout. राइट। So that is what is our strength. And parallelly, for both the verticals, audits are very important in our industry. Health audit, safety audit, environmental audit, 5S, QC process, lean management, all these are very important. So normally ISO is mandatory, but nobody is satisfied with the ISO. Every brand has his own way of working and his own way of audit. So a couple of months goes in audit where audit team will come, they will give they will have their own assessment, they will ask a lot of questions, they will see everything, and then they will give us a marks.
and out of 100, 70, 75 is minimum passing mark. So we have to go through that. Once we pass from the audit, once our drawings are proper, prototyping is proper, then it goes in a commercial. Once we close the commercial, then it goes with a pilot and then roll out. Whereas in industrial vertical is normally like it is not a service industry. We are in them, even though in manufacturing is like a service industry where we have to satisfy new challenges, new colors, new dimension, new launches, new shapes every day. Every brand wants to be, they need to be look different than others. Whereas in industrial, those are not criteria. The company will visit us, they will approve us, again the audit, everything will be the same process. Then they will offer us 1 or 2 items, and then it continues. Like every quarter, they will give us the numbers that January we need this much, February we need this much, March. But it's a replica, like you are producing the same items. Got it. Yes, sir. So as your customer grows, you will get repeat orders and you also grow along with that, right? I mean, apart from getting new customers. If you see, basically, we are in projects. So in projects and rollouts, your customer base is not too big, I mean to say. Even though we might have 25, 30 odd customers, our major customer will be less than 10. Got it. Like 70% of the business will be from 30% of the customer. And any healthy business normally has that only. So we go with our customers very long. We are elevating shoppers' experience. We are very close to the brand. Brand has produced very good product. And we create a good environment around the brand. And there's a reason brand takes about 6 to 8 months to take us on their board. And once they take us on their board, then there is a daily communication. There are daily things happening. And once we start, then definitely we go for a very long time. And that's how the business grows. Sir, आपका obviously business बहुत ही यूनिक है, niche है, और आपका कंपनी का नाम भी यूनिक है. तो उसके पीछे की स्टोरी बताइए, कैसे ये नाम और सर ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की और अपने बिजनेस यहाँ तक पहुंचा है. Sir, I will try to address the way you asked me. आपने जो बताया कि भैया बिजनेस थोड़ा यूनिक है, आई डू अग्री. हमारा बिजनेस चैलेंजेस वाला है, काफी फिनिशिंग वाला है, काफी टैलेंट वाला है. बट देन यू नो वेयर द चैलेंजेस एंड टैलेंट इज देयर, investors are happy over there. I'm also an investor to an extent, so I'm also happy with it. Number one. Number two, company का नाम का, it is a one, you can say it is a one of the fundamental identity of the company. Naman means pranam. Yes. It is not anybody's name as such. Okay. Naman means respect. Naman means when we deal with our clients, when we deal with our suppliers, when we deal with our employees, this speaks that ये बताता है कि हमको कैसे बात करनी है उनसे, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए उनके साथ में. तो हमको बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है कोई भी सिचुएशन में, किसी के भी साथ में. सामने कोई भी छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, एक्स क्लाइंट हो, वाई क्लाइंट हो, एक्स सप्लायर हो, वाई सप्लायर हो, हमको हमारे लिमिट में रहना है और एक बहुत इज्जत से बात करनी है. टुडे वन ऑफ आवर मेजर स्ट्रेंथ, आज की हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, यंग एज एक्सेट्रा, इज कम्युनिकेशन. हमारा बिहेवियर और कम्युनिकेशन हमारी, और कहां ना कहां इसकी शुरुआत कंपनी के नाम से होती है. बिल्कुल. सो हमारे ब्लड में है, इज्जत से बात करो, शांति से बात करो. दैट इज वन, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो. वी हैव ग्रोन ओवर द इयर्स ऑन दिस प्रिंसिपल. इसकी शुरुआत कहां से हुई सर? बेसिकली 1999 में मैंने ये धंधा चालू किया था. आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर, चेयरमैन. आई हैव 4 माय अदर कलीग्स हु आर फुल टाइम डायरेक्टर्स, जय, मेहुल, शाहिद एंड फोरम. इसमें से मैं, जय, शाहिद, मेहुल, वी आर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 20 years. We have created this company together. Forum has joined us few years back. Forum is a CA. She is a qualified CA. She is a full-time finance director, and she keeps a track of each and every rupee. Right. So 1999 में जब मैं बाहर जाता था तो रोड पे मेरे को काफी स्टोर दिखाई देते थे, बोर्ड्स दिखाई देते थे, बैनर्स दिखाई देते थे. तो मेरे को ये इंडस्ट्री हमेशा अट्रैक्टिव लगी थी. तो समवेयर इन 1999 में हमने हिंदुस्तान
लीवर जो आज की यूनिलीवर है, हिंदुस्तान राइट। यूनिलीवर, वहां से शुरुआत की, वहां से हमको पहला ऑर्डर आया और तब से रिटेल में है। ओवर द इयर्स क्या हो गया, 2010 में नमन का जन्म हुआ एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। राइट। वी ब्रॉट एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। हमने एक्साइज चार्ज करना चालू किया एंड फ्रॉम देयर ऑन 2010 to 24 it is a very successful journey, but it is a journey जहाँ पे लोग जुड़ते गए, नॉलेज बढ़ते गया, क्लाइंट बढ़ते गए, प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते गया एंड टुडे मे बी एट द अप्रोप्रिएट मोमेंट आज हम लोग आपके पास आए हैं, आपके सपोर्ट के लिए आए हैं और आज हम लोग एक लार्ज स्केल को देख रहे हैं आगे। हमने यूएस भी एक्सपोर्ट चालू किया, हमने यूरोप भी एक्सपोर्ट चालू किया। तो आगे जो पोटेंशियल है वो एक, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अनलिमिटेड पोटेंशियल। आगे एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है जिसको टैप करना है और यही धंधा किया है, लास्ट 25 साल से यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो सही। बस ये करना है और आगे बढ़ना है। तो उसमें अभी कहाँ ना कहाँ लगा कि अभी आपके साथ की जरूरत है या आपके साथ से ज्यादा जल्दी आगे जा पाएंगे। सो दैट इज द रीजन। बट यस, ये जर्नी हुई थी 99 में और आज हमको ये इंडस्ट्री में 25 साल हो गए सर। बिल्कुल। तो काफी डीप एक्सपर्टीज आपने बनाई है इस बिजनेस में। सर, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के ग्रुप कंपनीज में और कौन सी एंटिटीज है, कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंपनीज है? नहीं है। ओके। See, I cannot answer legal point of view से, but as much as I know there is we don't have any, नमन का कोई दूसरा एंटिटी नहीं है, ओके। नमन का कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है। ऑलराइट। और सर, आई बिलीव आप पैन इंडिया, आई मीन अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, राइट? जैसे Yes. आपने बताया आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो रुझान क्या इंडिया का ज्यादा है या एक्सपोर्ट का ज्यादा है, पिछले कुछ सालों की बात करें तो? सर दोनों मार्केट अपने आप में अलग है। अ, ज्यादा बोलना बहुत डिफिकल्ट है, दोनों में भयंकर स्कोप है। अगर लोकल मार्केट की पहले बात किया जाए, अगर जो मेरे हिसाब से अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊं, तो लोकल मार्केट की बात अगर की जाए तो 2 टायर 3 टायर सिटीज के अंदर रिटेल स्पेस, अपार्ट फ्रॉम मेट्रोज, अपार्ट फ्रॉम बिगर सिटीज, 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी रिटेल स्पेस बहुत फिनोमिनली बढ़ रहा है। हर घर घर में आज ब्रांडेड आइटम्स आ गई है। आज अपनी बात छोड़ो, अपने छोटे में छोटे बच्चे होते हैं तो भी उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज चाहिए, ये ब्रांड का घड़ी चाहिए। पहले जैसा नहीं रहा है कि भैया आप दुकान में, घड़ी की दुकान में लिया, गए और खरीदा, कौन से ब्रांड का है क्या है। चश्मे भी अभी ब्रांडेड आ गए हर कोई। सो ब्रांडेड स्पेस बढ़ रहा है, प्लस प्रीमियम ब्रांड्स। हमारा क्या स्पेंडिंग पावर अच्छा है, हमारे यहाँ पे जीडीपी बढ़ कंटिन्यूसली हाईएस्ट है। तो बाहर से भी बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज की बहुत सारी ब्रांड एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ क्वांटिटी में इंडिया में लॉन्च कर रही है अपने स्टोर्स। वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम लोग ब्यूटी में है। अगर उसके अलावा आप देखेंगे तो हम लोग ब्यूटी में है। ब्यूटी में हमारा एक निश है ब्यूटी। आज सलोन। जो हिसाब से सलोन की नंबर्स बढ़ रहे हैं, ब्यूटी, स्किन, हेयर, कॉस्मेटिक के ऊपर जो काम हो रहा है, जितनी अपने यहाँ पे कैफेस है उतनी उससे ज्यादा सलोन बन जाएगी। एवरी ऑल्टरनेट बिल्डिंग में सलोन्स आएगी। सो बहुत बड़ी मार्केट है सलोन्स, जहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है आगे। और बाहर से अपना डिमांड फॉर लग्जरी ब्रांड बढ़ रहा है, सेमी लग्जरी ब्रांड बढ़ रहा है। पहले ऐसा था कि लग्जरी ब्रांड्स खाली दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में मिलता था। आज अभी एक एवरेज सिटीज अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, आज ये सब सारी सिटीज में भी, इंदौर हो गया, ये सब सिटीज में भी लग्जरी और सेमी लग्जरीज ब्रांड एक्सपैंड हो रही है और काफी सारे रिटेल स्पेसेस खुल रहे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप है। सिमिलरली एक्सपोर्ट में ऐसा है कि नाउ एवरी कंट्री, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्री, वेदर इज नॉर्दर्न अमेरिकन और यूरोप, अगर आप देखेंगे तो China+1 का पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है। सो चाइना के साथ में उनको और एक कंट्री चाहिए जहां से वो लोग माल खरीदते हैं। एंड इंडिया हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले ओवर देयर। आज हम लोग चाइना के साथ कॉस्ट में कंपेरेबल है, आज हम लोग चाइना के साथ में क्वालिटी में कंपेरेबल है। तो एक्सपोर्ट तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज
दे ऑल आर गोइंग China+1। तो दोनों मार्केट में काफी स्कोप है। तो जो आपने रुझान पूछा, तो रुझान का मैं तो ये बोलूंगा कि दोनों वर्टिकल अलग है, बट दोनों में। और तीसरा वर्टिकल जो इंडस्ट्रियल वर्टिकल है, जहाँ पे हम लोग पावर पैनल बनाते हैं, एचवेक के कंपोनेंट बनाते हैं, पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर बनाते हैं, अगर आप मेरे को स्कोप पूछेंगे तो अगला 5-7 साल 8 साल अब सोच नहीं सकते, उतना स्कोप है। क्योंकि क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर, हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, बाकी सर्च इंजिन पता नहीं क्या क्या वापरते हैं मोबाइल के ऊपर, और कितना डेटा जनरेट करते हैं। और वर्ल्ड का बोलते हैं 14% डेटा इंडिया में जनरेट होता है अप्रोक्सीमेट। ये सब डेटा जो जनरेट होता है, उसको डेटा को स्टोर करना है, वो डेटा को एनालिसिस करना है, उसके लिए डेटा सेंटर्स बहुत कम है। डेटा सेंटर्स की इतनी जरूरत है कि अगले 5 साल 7 साल 10 साल के तक के प्लान सब फ्रीज है। और हर एक डेटा सेंटर में पावर पैनल जाती है, हर एक डेटा सेंटर में बैटरी रैक, सर्वर रैक्स जाते हैं, क्लीन रूम जाते हैं, एयर कंडीशन प्लांट जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल में इतनी रिक्वायरमेंट है, पूछो मत। और जहां तक एनर्जी का सवाल है, पेट्रोल पंप के जो कियोस्क हम लोग बनाते हैं, जहां से आप पेट्रोल या डीजल भरते हो, आप पेट्रोल भरो, आप डीजल भरो, कल सवेरे आप इलेक्ट्रिक से चार्ज करोगे। बट देन वो यूनिट है, वो यूनिट का तो रिक्वायरमेंट रहने ही वाला है, आपका एनर्जी परचेस बंद नहीं होने वाला है। राइट। आप जब भी पेट्रोल भर रहे हो, तो आप अपनी एक जगह से एनर्जी खरीद के उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हो, वो पेट्रोल पंप से लेके अपनी गाड़ी में शिफ्ट करते हो। आप जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग आप अपनी गाड़ी में ले रहे हो, वो तो रहने ही वाला है। और उसके लिए जो मीडियम लगेगा इन बिटवीन, जो प्रोडक्ट लगेगा, वो तो है ही। सो हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ने ही वाली है। सो स्कोप तो हर जगह पे काफी अच्छा है। गॉट इट। एंड दैट इज द रीजन वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट द ग्रोथ, वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट द वैल्यू वी कैन क्रिएट। यस सर। ओके सर, मैं आपकी रेवेन्यू देख रहा था लास्ट 3 इयर्स एंड 6 मंथ के, काफी अच्छी ग्रोथ है, बट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। अगर मैं लास्ट 6 मंथ की बात करूं तो आपका रेवेन्यू अराउंड हाफ है, बट प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गया। तो ये क्या वन ऑफ केस है, या इट्स विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो? नहीं सर, वन ऑफ नहीं है। देखिए, अगर आपने फिगर स्टडी किए हुए हो, तो टर्नओवर में जंप है ना, काफी बड़ा है। अब ये प्लान जंप नहीं होता है। और अनप्लान जंप जब भी आता है ना, तो अनप्लान एक्सपेंसेस को लेके आता है। सो वॉट एवर द प्रॉफिट इंप्रूवमेंट यू सी, इट इज बिकॉज ऑफ कि ओके, कैपेक्स थोड़ा स्टेबल हो गया, थोड़ा ग्रोथ अभी स्टेबल हो गया, तो वेयर यू कैन फोकस ऑन एफिशिएंसी। जब भी अनप्लान ग्रोथ आता है, तो अनप्लान एक्सपेंस लेके आता है, जैसे कि अभी इतना माल देना है, ओवर टाइम करो, बाहर काम कराओ, कोई भी करके कुछ भी करो। There are so many डिलीवर करो। expenses when you run an industry. But when things streamline, you control your expenses, you try to bring out maximum from that particular machine, from that particular process, that particular person. So then you control your gross margin. The improving efficiency is controlling your gross margin. So जो प्रॉफिट अभी आपको दिख रहा है, वो रियल प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट रहने वाले हैं। और वो प्रॉफिट नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? यस सर। तो वो प्रॉफिट रहने वाले हैं, एंड दैट कम्स विद एफिशिएंसी, दैट कम्स बाय कंट्रोलिंग ग्रॉस मार्जिन। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको ग्रॉस मार्जिन कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और द मोमेंट यू कंट्रोल योर ग्रॉस मार्जिन, यू कैन विन एनी वॉर। ओके। एंड सर, जिस हिसाब से अब आपके काफी आईपी प्रोसीड्स आएगी, इक्विटी फंडिंग आ रही है, आपका डेट स्लाइटली इंक्रीज है नॉट गोइंग फॉरवर्ड। तो गोइंग फॉरवर्ड इक्विटी के साथ आपको डेट रेजिंग फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, या 2-3 ईयर के लिए इट्स सफिशिएंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ? See, for me right now, it is very difficult to answer this. But a personal opinion, I'm not committing any something or anything like that. But we have very good factory. We have very good capex. We have already installed. We have done very good capex. In fact, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आप में से कोई भी फैक्ट्री विजिट करना चाहता है, most welcome. We'll be happy, and we'll be content with what we are at. ओके। एंड सर, जैसे अभी आपने बताया था कि आपकी लिमिटेड कस्टमर मेजोरिटी फंडिंग गई थी, लाइक 30% ऑफ कस्टमर कंट्रीब्यूट 70%, और मैं आपके टॉप 10 कस्टमर देख रहा था, दे कंटिन्यू अबाउट लाइक 92% बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो गोइंग फॉरवर्ड भी आपका वही रहेगा कि लाइक टॉप 10 कस्टमर विल कंटिन्यू, या इसमें जैसे एक्सपोर्ट वगैरह से कुछ आपके कस्टमर बेस डाइवर्सिफाई होंगे?
हाँ सर, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, बिकॉज कोविड में हम सब लोग ने कुछ ना कुछ सीखा है। सो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। एंड डाइवर्सिफिकेशन तो एक ऐसा है कि हर बिजनेसमैन को हमेशा वो विंडो ओपन रखना चाहिए। बट आप अगर मेरे कस्टमर स्टडी करेंगे तो दे आर वेरी लार्ज कॉर्पोरेट। एक लार्ज कॉर्पोरेट में क्या होता है कि एक कस्टमर के अंदर बहुत सारे कस्टमर होते हैं। सो बुक्स पे आपको 7 8 9 10 कस्टमर दिखेंगे, बट अगर रियल सेंस में जाएंगे, अभी जैसे कि रिलायंस है तो रिलायंस के अंदर भी काफी सारी ब्रांड्स रहती है, 100 ब्रांड 150 ब्रांड रहती है। हर ब्रांड अपने आप में एक कंपनी है। सो यस, बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ऑन बुक यू मे फील कि भैया मोरलेस यही पैटर्न रहेगा, बट देयर माइट बी अ डाइवर्सिफिकेशन, देयर शुड बी, इनफैक्ट देयर आर सम डाइवर्सिफिकेशन इन आवर माइंड and on our paper also where we are working upon. I would not prefer to speak on this, but those are very large scale diversifications, decent size I mean to say. And number of clients में more or less यही रहेगा कि client के अंदर दूसरा client रहता है। परचेस ऑर्डर सारा एक ही कंपनी के नाम पे आता है, बिलिंग सारा एक ही कंपनी के नाम से जाता है, पेमेंट सारा एक ही कंपनी से नाम से, बट वो अंदर अलग 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 ब्रांचेस है उसकी। सप्लायर साइड पे भी आपका कुछ कंसंट्रेशन है, या सप्लायर साइड पे लाइक आपके जो सप्लायर्स है वो काफी डाइवर्स है? Sir, supplier is your one of the major strength of your business. They are the backbone. They are the backbone of your business. So supplier side पे तो focus किए बगैर आप काम ही नहीं कर सकते. They are, as I mentioned, they are our major strength. So we normally buy from factories, manufacturers, or their authorized dealers. And काफी focus है. And they all are very strong in their own field. And yes, उसमें ज्यादा changes नहीं आते हैं और आने भी नहीं चाहिए. ओके सर, आपके बिजनेस के रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आई गेस इनपुट कॉस्ट एक रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, और डिपेंडेंसी ऑन द लेबर, राइट, स्किल्ड लेबर, वो भी शायद एक रिस्क हो सकते हैं। तो और कौन से रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई किए, और इसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? आई एम सॉरी, पहला रिस्क आपने क्या बताया मेरे को? इनपुट। इनपुट कॉस्ट। जी। या नाउ कमिंग टू, पहले आपका जो एड्रेस, पहले आपने जो रेस किए उसको एड्रेस करते हैं। इनपुट कॉस्ट में ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में अगर फ्लक्चुएशन आता है, तो इंडस्ट्रियल में तो क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट हर महीना मैप की जाती है और वो हिसाब से कॉस्ट रिवाइज होती है। राइट। और जो रिटेल वर्टिकल है, जहाँ पे ग्रॉस मार्जिन थोड़ा कंपेरेटिवली बेहतर रहता है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, चैलेंजिंग जॉब। यस। तो वहां पे भी अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन है, then customer revise the price. ओके। But हम then पास ऑन be कर fair, लेते हैं। it has to be on both the ways. It has to be on the both the ways. So input cost is not a major risk, number one. Number two, about the skill labor. If you visit the factory, अभी मैं क्या बोलूं, you must have heard of, हम बोलते हैं हमेशा like Lamborghini, Ferrari, बहुत लोग के पास अच्छी अच्छी मर्सिडीज होती है, अच्छी गाड़ियां होती है, तो हमारे पास भी है। सिर्फ फर्क ये है कि आपकी रोड पे रहती है, हमारी फैक्ट्री के अंदर है। तो वी हैव ब्यूटीफुल मशीन्स। सो ज्यादा करके काम है ना मशीन से होता है। जो लेबर होता है वो नॉर्मली एक असेंबली करता है और पैकिंग करता है ओके। और इंस्टॉलेशन करता है। लेबर के स्कोप में ये तीन चीज मेजर आती है, बाकी अदरवाइज मोस्ट ऑफ द काम होता है वो सारा मशीन से होता है। सो एंड वी आर इन दिस बिजनेस फॉर 25 years. We are a manufacturer for now almost 20 years plus. So, in fact, labor is our major strength. Labor is one of our major strength. Even though we are more technology-oriented company, but trust me, labor is one of our major strength, and they are with us for very long time. In fact, उन्होंने ही ये कंपनी खड़ी की है, so they are not at all the risk. उसके अलावा अगर रिस्क फैक्टर में जावे तो अभी दूसरा कोई कोविड आ गया तो मेरे को पता नहीं है भाई। राइट। तो उसके अलावा तो देयर इज नथिंग। ओनली थिंग इज दैट चैलेंजिंग इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी के जैसा। हर दिन नया डिमांड रहता है, नया फिनिश रहता है, नया स्किल सेट रहता है, नया मटेरियल रहता है, नया शेप रहता है। बट देन ये सब चैलेंजेस ही लास्ट में आपको धंधा दिलवाती है। यही सब चैलेंजेस लास्ट में आपको वैल्यू दिलवाती है, गुडविल दिलवाती है, और लास्ट में यही सब चैलेंजेस आपको प्रॉफिट भी दिलवाती है। बिल्कुल। सो nothing as such I can mention.
अभी एक चैलेंज आया है रिसेंटली, जैसे कि अभी ये रेड सी में जो क्राइसिस है, उसकी वजह से कंटेनर रेट्स आर वेरी हाई फॉर पर्टिकुलर फॉर यूएस फ्रॉम इंडिया। right. अभी ऐसी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आती रहती है विच इज नॉट इन माय कंट्रोल और योर कंट्रोल, Nobody एंड can वी हैव predict टू it, लिव man. विद इट। Right. या बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल कंपटीशन के बारे में। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आपके बिजनेस को इन जनरल काफी कंपटीशन मिलता है, कोई बड़े प्लेयर है जिसको आप अपना कंपटीशन मानते हैं, और हाउ इज योर टेक ऑन द कंपटीशन इन जनरल? दो अलग अलग सवाल है। सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हमारा कंपटीशन नहीं है। ओके। क्योंकि क्या होता है कि फैक्ट्री में जो मशीन्स है उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो परफॉर्मेंस और फिनिशिंग है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मैच नहीं कर सकता है। सो वो हमारा कंपटीशन ही नहीं ओके। है। सो नंबर वन, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई क्लाइंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काम कर रहा है तो हमारा काम है उसको जाके एजुकेट करना, उसको समझाना द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। एंड वंस द क्लाइंट इज कन्विंस्ड विद दैट, in fact it is an opportunity for us. So I would say that in India particularly, we have a huge opportunity to tap the market which is handled by unorganized sector. बिल्कुल। Coming to second thing, it is an official platform. I would not prefer to name anybody over here, so I will restrain myself from them. But yes, we do have competitors, we do have good competitors, but those are very few. There are a couple of in southern India, there are a couple of in northern India, but then there are very few. We are in a very niche industry, जैसे आपने वो स्टार्टिंग में बताया था जब बिल्कुल आपने नमन नाम के पीछे की कहानी पूछी थी। बिल्कुल। तो yes, we are in a very niche industry, but we do have and competition is one thing which keeps you in business. अगर प्रॉपर कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं आ पाओगे, कंप्लीसेंट हो इनोवेशन आज जाएंगे। बंद हो जाएगा, मेहनत बंद हो जाएगी। आई ऑलवेज एनकरेज एथिकल कंपटीशन। बिल्कुल। यस सर। थैंक यू राजू पालेजा साहब, आपने विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बताया और आपके सारे व्यूज हमारे ऑडियंस के लिए रखा। और इस इंटरव्यू को मैं नमन के साथ समाप्त करूंगा सर। अरे थैंक यू। भाई, so nice of you. Thanks for your time and thanks for inviting me. And it was wonderful speaking to you. And we assure our investors happiness, value, and yes, with the responsibility, profit. थैंक यू।